Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, welcome back to online class. So today we are going to start lesson 3, chapter 3 on the ocean. On the ocean. जी बेटा, word ocean you can look here. इसमें और sea में there is a difference. sea और ocean में difference होता है. The sea is normally smaller than the ocean. जो ocean होता है वो broad spectrum में होता है. वो it's not normally covered by or partially covered by the land. जो sea होता है वो partially cover होता है land से. Anyway, you can consult dictionary for the difference. First of all, we will talk about the learning outcomes. Learning outcomes जो हैं we focus on it in the very beginning of the lesson. और आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि by the end of lesson you will be able to do this or that. After completing this lesson, the students will be able to do what? A number of things here. These are the learning outcomes. These are the target area in terms of learning. You will be able to analyze the poem for a main idea. For a main idea. तो मेन आइडिया जो है वो किसी भी टेक्स्ट का, किसी पोएम का, किसी लेसन का, वो you should be able to write. You write the summary of the poem. You should be able to summarize the poem or any other given lesson. Next, understand how a poet uses language to appeal to the senses through similes. Identify and use rhyming words. Use appropriate expressions, vocabulary and style to engage in conversation. Furthermore, use linking verbs. Identify a topic sentence in a paragraph. Identify sentences carrying supporting details. Next, the last one, recognize that text comprises a group of paragraphs, a number of paragraphs that develop a single theme or. Beta, this poem, it is written by S.T. Coleridge, a very famous poet who wrote a lot of poems like Kubla Khan, Biographia Literaria and so many others. ये जो चंक है पोइट्री का, it has been taken from a very famous poem and especially the last stanza जो है, it is very famous. Look here on this picture, the painted picture of an ocean along with a ship. See here, these things, they are called mast. They are called mast. So after looking at the picture, we'll move next towards the poem itself. Well, there are 3 stanzas in fact. Okay. So let's go towards glossary first and look at the meanings, the vocabulary I mean here. Copper sky. The sky was like a sheet of copper. तांबे की तरह जो है बेटा उसका जो है वो कलर जो कि मैरून और ब्राउन या रेड इस तरह से मिक्स करके होता है. ब्लडी, लाइक ब्लड इन कलर. खून जैसा, सुर्ख. स्टक, nor breathe nor motion means indicates that everything was motionless, even the ocean. किसी किस्म की बिल्कुल कोई जुम्बश, कोई हरकत
ओशन में नहीं थी, मोशनलेस हो गया था, एज आइडल एज अ पेंटेड शिप। आपने देखा है पीछे पिक्चर में, जैसे वो पिक्चर है उसमें डेफिनेटली द वाटर एंड द शिप दे आर मोशनलेस। इसी तरह से वो कहते हैं कि हम भी ऐसे ही थे जैसे ये पिक्चर दी गई है, वी वर कंप्लीटली मोशनलेस, हेल्पलेस उस स्कॉर्चिंग हीट में। सो एज मोशनलेस एंड स्टिल एज द शिप इन अ पेंटिंग, जैसे पेंटिंग में एक शिप होता है। लेट्स गो बैक टू द पोएम इटसेल्फ एंड स्टार्ट ट्रांसलेशन। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसलेशन करवाता हूँ पोएम की, उसके बाद बाकी एक्टिविटीज। All in a hot and copper sky, the bloody sun at noon, right up above the mast did stand, no bigger than the moon. क्या कहता है पोएट? All in a hot and copper sky, वो कहता है कि it was a very hot day under a sky which was very hot, under the scorching heat of the sun. The bloody sun, the sun looked like red colored, and it was noontime and it was really hot. Right up above the mast did stand. Who was standing? The sun. वो कहता है कि सूरज जो है वो बिल्कुल ऐसे ही स्टैंड कर रहा था, ऐसे ही था जैसा कि इसके जो मस्तौल हैं, जो बादबान होते हैं, ये जो है जिसको मैंने मार्क किया हुआ है, बिल्कुल सीधा उनके ऊपर जो है वो सूरज यहाँ पे था। तो डायरेक्टली वहां से हम पे सूरज की जो हीट है वो आ रही थी। सो वेयर वाज द सन? राइट अबव द मास्ट डिड स्टैंड, जो मस्तौल थे, बादबान थे, उसके एक पोल होता है, पोल के ऊपर एक खास किस्म का कैनवस का या इस तरह का कपड़ा लगा होता है। तो कहता है कि उसके डायरेक्टली ऊपर जो है वो सीधा सर के ऊपर जो है वो सूरज चमक रहा था। नो बिगर देन द मून, जो कि चांद से ज्यादा बड़ा नहीं था। सेकंड स्टैंजा। डे आफ्टर डे, मतलब दिन गुजरते गए, वी स्टक नॉट ब्रीथ नॉर मोशन, एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन। वो कहता है कि इनफैक्ट हुआ क्या कि ये एक सेलर की स्टोरी बयान कर रहे हैं पोएट जो हैं, और उसका बड़ा तल्ख तजर्बा जो है, जिसमें सारे के सारे जो थे अदर देन सेलर, वो सारे के सारे सर्वाइव नहीं कर पाए, और वो सब के सब उस स्कॉर्चिंग हीट में जब उनका शिप मोशन नहीं कर रहा था, मूवमेंट नहीं कर रहा था आगे, तो वो सारे के सारे दे डाइड। सर्वाइवर्स में ये थे। तो सेलर जो है उसकी ज़बानी वो उसका एक्सपीरियंस जो है, बिटर एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि दिन गुजरते गए, एक दिन के बाद दूसरे दिन, वी स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, तो हम मुकम्मल तौर पे उस पे स्टक हो गए, हम जम गए वहां पे। वी वर अनएबल टू मूव, और बिल्कुल किसी किस्म की हम हरकत नहीं कर सकते थे। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, वो जो ऊपर आपको मैंने पिक्चर दिखाई है, वो कहता है कि हमारी सूरत हाल भी इस पिक्चर जैसी ही थी, कि जैसे एक पेंटिंग हो बहुत बड़ी और उसमें पानी भी हो और उसके ऊपर शिप हो, तो जैसे वो दोनों पानी और शिप मूवमेंट नहीं कर सकते, मोशनलेस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग भी वहां पे मोशनलेस थे। लास्ट स्टेंजा जो है, इसकी लास्ट दो लाइनें जो देर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो कहता है बेबसी की इंतहा है, कहता है वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक। वो कहता है कि हर जानब पानी ही पानी था, हम पानी में घिरे हुए थे चारों तरफ से। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, ये बोर्ड्स क्या हैं? ये उस जहाज के तख्ते हैं जो कि साइडों पे लकड़ी के लगे हुए थे। वो कहता है कि वो भी इतनी गर्मी थी कि पानी होने के बावजूद वो सारे सुकड़ चुके थे। श्रिंक का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सुकड़ना। तो वो कहता है कि इस गर्मी की वजह से जहाज के तख्ते भी इवन वो सुकड़ गए, हालांकि हर तरफ पानी था क्योंकि गर्मी इतनी थी। लास्ट स्टैंजा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट but not a drop to drink. Water water everywhere but not a drop to drink.
वो कहता है कि एवरीवेयर देयर वाज वाटर, वी वर सराउंडेड बाय वाटर, बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, एक कतरा भी हमारे पीने के लिए नहीं था। उसकी क्या वजूहात होती हैं? एक तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो समंदर का पानी होता है इसमें नमकियात इतनी ज़्यादा होती है, इतना सॉल्टी होता है कि आप इसको पी नहीं सकते बिल्कुल। ये इवन आपके जिस्म पे अगर टच कर जाए, ऊपर से थोड़ी सी धूप पड़ जाए तो आपके जिस्म पे ज़ख्म जो है वो बन जाते हैं। तो कहता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू। जी बेटा, अबाउट द पोएट। So S.T. Coleridge was an English poet, literary critic, वो एक इंग्लिश शायर थे, literary critic, एक अदबी नक्काद, and a philosopher, और एक फलसफी। Among his poetic works, उनका जो अदबी काम था, The Rime of Ancient Mariner and Kubla Khan are the most appreciated and well-known poems. Biographia Literaria is his major prose work. नसर, प्रोज किसको कहते हैं? नसर को, जो कि नज़म का उलट होती है। तो ये बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है बुक, ये इट्स पार्ट ऑफ सिलेबस इफ़ यू वांट टू डू मास्टर्स इन इंग्लिश। Some information about the poem. These stanzas have been taken from S.T. Coleridge's poem, The Rime of Ancient Mariner, one of the most influential poems in English language. ये बड़ी बहुत ही मशहूर और बड़ी मुअस्सर जो है वो एक असर रखने वाली पोएम है। This poem is about an old sailor, एक जो सेलर है, मलाह है, उसके मतलब who narrates his long story about a voyage, जो अपने एक बहरी सफ़र को बयान करता है, which is in which his entire crew was killed, वो जितना भी उसका साथ अमला था वो सारे का सारा मर गया उसमें। In the given stanzas, the narrator explains the hardships and dangers that they encountered during the sea voyage. ये जो stanzas हमें दिए गए तीन, इनमें वो उन तमाम मुश्किलात और मसाइब और ख़तरात की वजाहत करता है जो उन्होंने जिनका उन्होंने बहरी सफ़र के दौरान सामना किया। Yes beta, let's move to the next activities section. Activity A, answer the following questions. 1. Write the main idea of the poem. 2. Define the bloody sun. 3. Why everything was stark. 4. What do you understand by the painted ocean? 5. Explain the stanzas in your own words. Explain the last stanza in your own words. Beta, you know about the background of the poem, why the poem was written. Okay, now you will answer these questions in your own words in your rough notebook or a piece of paper. Send it to me, and after that I will solve all these questions and send it back to you. Thank you so much. Watch the lessons 2-3 times and then solve the activities, the comprehension questions. Thank you.